As you know, this has been our second and important theatrical unit that we released just now as we speak online. The film actually has been open to conjecture from the time that actually it started, and even pre-release, the buzz and banter about it continues. All I have to say personally, I think it's been the most exhilarating experience of my life, being directed by Anurag Kashyap, from a man, from a relationship that began with hate, that has now culminated into intense love, and there is absolutely no pun in that thought. It's really been quite a journey for me in the film, and working under him has been like going to film school. I felt I had to unlearn everything I ever knew about cinema and actually learn something absolutely new. Working with the two of them, actually Anushka and I did very few days of work, but the few days were memorable. And Ranveer actually co-directed the film with Anurag, where I'm concerned, because Anurag would give me one instruction and Ranveer would give me 3 others. Most of my scenes were with him, so I felt I was being directed by him as well. And I have to say, Ranveer has the makings of a great filmmaker, which is a great fallback plan for him if all things do fail. I have to say a big word to Phantom, which I think has been putting out such tremendous content almost about 3 or 4 times a year. I think truly this film will kind of cement and seal that when it comes to new age path-breaking content, Phantom is definitely the one-stop shop. And I think supported so superbly and dynamically by Fox Star. Vijay, thank you very much for lending such tremendous support into this type of cinema. There is always so much that is said about cinema like this, where they say, you know, is this mainstream, is it commercial? But eventually we all have to know a good film is a good film and you should not categorize it. And Bombay Velvet is that film. It's a good film. And I think thank you. When it comes to the funding, I think that's most critical for a film with a vision. And I think Fox Star pulled all stops to execute the film in its best possible way. So thank you. Thank you to the entire team at Fox, the marketing team, the production team, the distribution, all of them. And I think I behaved like I have funded this film. I've spoken so much. So I'm going to now pass the mic on to Anushka, who's going to sing a song like she does on stage. No. I think Karan has said a lot, and we all are in agreement. As Ranveer was yet again directing Karan and saying, "Let's open the floor for questions." I would like to now call this press conference open. मैं आपसे करता हूँ कि आपने NH10 की, PK की, अब आप हैट्रिक में आपका क्या इरादा है? हैट्रिक में क्या इरादे तो बहुत अच्छे हैं, और ऐसे सारे आसार लग भी रहे हैं कि ये पिक्चर भी लोगों को खूब पसंद आएगी. लेकिन बाकी तो हमको देखना पड़ेगा 15 मई को रिलीज के बाद लोग क्या सोचते हैं. लेकिन हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत और प्यार से इस फिल्म को बनाया, हर एक इंसान ने, हम एक्टर्स ने, फिल्म मेकर जिन्होंने इस फिल्म को पुटअप किया है, जो इस स्टेज पे है, और जिन्होंने जो लोग ने इस फिल्म पे काम किया है. सो वी जस्ट होपिंग कि जिस प्यार से हमने इस फिल्म को बनाया है और जितना बिलीव हमें था, वो लोगों को देखने को मिलेगा जब वो फिल्म देखेंगे. थैंक यू. तो अनुराग को, अनुराग, थैंक यू. अनुराग जी, आपने खासकर करण जी में क्या बात देखी कि इतना जबरदस्त रोल कर पाएंगे? जरा बताइए, आपने कैसे कन्विंस किया, कैसे तैयार हुए हैं? आप क्या है? हेलो, आपने मुझ में खामी क्या देखी कि आपने ये सवाल किया? आपने बहुत दिख नहीं रहा इतना सेक्सी सा आदमी हो, कोई भी कास्ट करेगा मुझे. उन्होंने आपके बारे में, बैंड्रा के बारे में बताया. पूरे बॉम्बे, पूरे इंडिया में सेक्सी हैं, लेकिन आपने काम बड़ा अच्छा किया था. आपने क्या देखी बात? आपने ट्रेलर देखा? बहुत अच्छा हुआ. और ट्रेलर में आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया. इसलिए आपने देखा, वो एक्चुअली ट्रेलर है. आप जब फिल्म देखेंगे और फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे अच्छी कास्टिंग कोई हो नहीं सकती थी. मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूं. करण जी को मैं नरेट करने गया था, उसके पहले हम लोग नसीर जी और बहुत सारे दूसरे एक्टर्स से बात कर रहे थे, और बातें कभी कंप्लीट नहीं हुई थी. जब मैंने करण को कास्ट किया, पहला मैसेज मुझे नसीरुद्दीन शाह का आया, क्योंकि वो रोल जानते थे. उन्होंने कहा, दिस इज द मोस्ट इंस्पायर्ड कास्टिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, बिकॉज ही इज योर खम्बाटा. ये नसीरुद्दीन शाह ने मुझे मैसेज करके बोला. आई वॉज इंस्पायर्ड एंड चीप, बाय द वे, क्योंकि मैंने ये पिक्चर 11 रुपए में की है. मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि आई हैव बीन एक्सप्लॉइटेड. कारण हमारे बजट को बढ़ा नहीं पाए. हाँ, मुझे 11 रुपए, बाकायदा 11 रुपए का चेक मुझे मिला है फैंटम से, तो इसलिए मैं इंस्पायर्ड हूं, और थोड़ा सस्ता भी. बट इट वॉज ए ग्रेट एक्सपेरिमेंट बाय कश्यप साहब. No, I'm so happy he said yes to the film, and when you see him in the film, you'll see that there's nobody else who could have been Khambata. हाय रणवीर, सवाल है कि 60s का लुक था आपका, जॉनी बलराज बनना था, तो एग्जैक्टली
जब हम ये पोस्टर देखते हैं और आपको देखते हैं तो कितनी प्रिपरेशन आपकी खुद की थी इस पर्टिकुलर रोल के लिए? Good evening, ladies and gentlemen. This film starts in the 50s and 60s. Of course, superficial references तो बहुत थे. He wanted to, refer to Robert De Niro from Raging Bull, Back Home, Kishore Kumar, Raj Kapoor. But those were just superficial references. जहाँ preparation की बात है, I think the entire technical side of Bombay Velvet did so much of research for 8 years. जहाँ sets की बात है, जहाँ cinematography है, if you see the making also, a lot of work has gone. So when 3 of us came on set, it was very easy for us because we were transported into this world of 50s. We came in hair, costume, wardrobe, and it just felt like it. जो trams बनाए थे, the junior artists, intricate details like जो Bombay Velvet में जो plates थे, napkins था, Rosie का जो green room था, उसमें the small properties. I think a lot of detailing has gone by the technical side, and I think all the research work, all the preparation that an actor should do was done by them. So I think that really helped us a lot. अनुराग, प्रमोशन में बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कब प्रमोशन शुरू होगा. इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि हार्डली 15-18 दिन बचे हुए हैं. नहीं, प्रमोशन शुरू हो चुका और हम लोग का एक बहुत फर्म बिलीफ रहा है किसी भी फिल्म के लिए की प्रमोशन टाइम पीरियड जो है वो इतना ही होता है. बाकी सब जो है आपका वो काम का होता है, वो आप अपने आप को खुश करते हो. जैसे जब आप देखो बंबई के अलावा कहीं शहर में होर्डिंग्स नहीं लगते हैं, और जब होर्डिंग्स कहाँ लगते हैं वो हीरो के घर से लेके जहां तक वो जाता है वहां तक लगते हैं, और प्रोड्यूसर के घर से जहां तक वो जाता है वहां तक लगते हैं. वो अपने आप को खुश करने के लिए होते हैं. तो हम लोग ने पहले से ही डिसीजन ले लिया था कि हम ये सब चीजें दूर रखते हैं और हम लोग लेट्स फोकस ऑन रियल प्रमोशन और जिस तरह से करना चाहिए. तो इट्स वेरी स्ट्रैटेजाइज एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर बाय द होल टीम, और बहुत ही प्री डिसाइडेड था. इसीलिए कोई भी कुछ भी कह रहा था हम लोग ऐसे शांति से क्यों बैठे, बिकॉज़ हमें मालूम हम कर क्या रहे हैं. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू पुट आउट देयर. रणबीर और अनुष्का दोनों से सवाल है कि गीत है मोहब्बत बुरी बीमारी, इस वर्ड पे कितना इत्तेफाक रखते हैं हम दोनों? मोहब्बत है सबसे बुरी बीमारी, मोर देन प्लेग, डेंगू, इससे ज्यादा तो मोहब्बत बुरी बीमारी होती है. बट आई थिंक द प्ले ऑफ वर्ड्स, अमिताभ भट्टाचार्य जी के बोल हैं, एंड आई थिंक द वे ही इज रिटन एंड यूज्ड मोहब्बत बुरी बीमारी, आई थिंक इज इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, क्योंकि आप यू आर टेकिंग, आप मजाक उड़ा रहे हो उसका. एंड तो आपका क्वेश्चन क्या था? मेरे लिए मोहब्बत बुरी नहीं, मैं बीमारी तो नहीं कहूंगा, बट आई थिंक इन फन वे मोहब्बत है एक बीमारी, बिकॉज आप बीमार पड़ जाते हो, यू आर जस्ट इन दैट स्टेट. तो मोहब्बत सबसे बुरी बीमारी है बिकॉज यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट स्टेट. तो मोहब्बत है सबसे बुरी बीमारी. अनुष्का, यू वांट टू? आई एग्री विद हिम, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी क्या पूछा ओरिजिनल तबीयत खराब होती है. अच्छा भी लगता है कभी तो तबीयत खराब होती है कि रिलैक्स आराम से लेटे हुए हो और कोई मतलब ज्यादा कुछ करने को नहीं है एंड ऑल दैट. सो दैट इज आल्सो गुड. आई डोंट नो व्हाट. आदमी बुखार में इतना बिस्तर पे नहीं लेटता जितना मोहब्बत में पड़ा रहता है. बट मोर देन इट्स प्ले ऑफ वर्ड्स मोर देन एनीथिंग एल्स. बिकॉज इन दोनों के जो प्यार है वो इतना पैशनेट है, और इनफैक्ट इस फिल्म में जब आप देखेंगे इनकी जो लव स्टोरी है, ये परहैप्स इफ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग सो, ज्यादातर हमने नहीं देखा है ऑन स्क्रीन जो इनका प्यार है जो आपको देखने को मिलेगा. लेकिन वही प्यार फिर इनकी वीकनेस भी बन जाती है, बिकॉज देयर इज नो नीड दैट दे हैव फ्रॉम वन अनदर. इट्स अनकंडीशनल लव. तो कभी कभी वो भी उनकी एक उनकी लाइफ में एक मुसीबत बन जाती है. तभी गाना का नाम है मोहब्बत बुरी बीमारी. सो इट्स मोर लाइक द रेफरेंस टू द फिल्म, एंड दैट्स व्हाई द प्ले ऑफ वर्ड्स. Hi Anurag, yo, to your left. Yo. Yeah. Considering... To his right. Okay, I'm on the left. Your left. Yeah. Considering the title is Bombay Velvet, are you expecting any issues with the word Bombay? Or is it going to be okay because it's set in that time? I don't think there is going to be an issue. Even Prahlad ji has said there is no issue because the film जैसी फिल्म है और जिस समय की फिल्म है, और मुझे कहीं से अभी तक किसी का भी फोन नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ. मुझे कोई इशू का एक्सपेक्टेशन नहीं है बिकॉज वो जगह का नाम है. बॉम्बे इन दिस फिल्म इज लाइक अ नाउन, नो नेम ऑफ अ प्लेस. Will the no smoking banner be there? Will the no smoking disclaimer still be there in the film? जब तक वो लॉ है तो लॉ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा. अनुराग, हर कैरेक्टर का लुक कितना इंपॉर्टेंट था, हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू पुट अप दैट पर्टिकुलर लुक ऑन ईच एंड एवरी कैरेक्टर. जी, डिफिकल्ट तब तक होता है जब तक आप जीरो डाउन नहीं करते, जब तक आप फाइनल नहीं करते. एक बार फाइनल कर लेते हो और सब एक मोशन में चले जाते हैं, उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है. वो एक बार डिसाइड हो गया तो सबको मालूम है. अनुष्का को पता है कि उसको रोज 2-3 घंटे लगने वाले हैं, रणबीर को पता है उसको रोज 1 घंटा लगेगा.
करण को भी 45 मिनट लगते ही थे, तो वो सबको रेडी होने में टाइम लगता था उतना। तो एक बार लुक डिसाइड हो गया तब तक उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, वो दिक्कत होती है वो डिसाइड होने से पहले। और सबके लिए हम लोग ने किस तरह के रेफरेंसेस यूज किए, जिस तरह की हम लोग सेट बनाने के लिए भी हम लोग ने एक्चुअल बॉम्बे के पुराने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स जो है वो रेफरेंसेस के तौर पे यूज किए, एक्चुअल बिल्डिंग्स वहां पे रिक्रिएट की ओरिजिनल साइज में। वो बस ये कि हमने बिल्डिंग्स के ऑर्डर चेंज कर दिया थोड़े बहुत, बिकॉज वो पूरा बॉम्बे नहीं बना सकते थे। किस चीज के लिए दिक्कत आई होगी? एक्चुअली डेफिनेटली पीरियड फिल्म है तो एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब जनरली आप देखते हैं जब बड़े बजट की फिल्म बनती है वो जाती है 150-200 दिन। हमें ये फिल्म जो है अपने टाइट कंट्रोल बजट में खत्म करने के लिए और अच्छे से करने के लिए 75 दिन शूट करनी थी। हम लोग बहुत लंबा लंबा शूट करते थे और द काइंड ऑफ कोऑपरेशन आई गॉट फ्रॉम एवरीवन, वी हैव मैनेज्ड टू फिनिश द फिल्म इन 75 डेज। तो वो था, वो दिक्कत हमारी प्रोडक्शन हमारी असिस्टेंट टीम के लिए थी। अनुराग आपके राइट, अनुराग आपके राइट, अमित फ्रॉम दैनिक जागरण। अनुराग, हर क्राइम करने के पीछे एक मोटिव होता है, वैसे ही हर कहानी कहने के पीछे भी एक मकसद होता है, इरादा होता है। और आप चूंकि मतलब नॉन मराठी हैं या नॉन मुंबईट हैं, तो इस फिल्म में बॉम्बे को मतलब 60s के बॉम्बे को दिखाने के लिए किस किस्म की रिसर्च की, और इस फिल्म से आप क्या कहना चाहते हैं? रिसर्च हमारी का, मैं तो कहना सिर्फ कहानी चाहता हूं। मैंने आज तक कभी किसी फिल्म के जरिए किसी को भाषण देने की कोशिश नहीं किया। कहना मैं कहानी चाहता हूं, मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूं, साथ ही साथ उनको दिखाना चाहता हूं कि एक ऐसा शहर था हमारा, जहां से दिखाना चाहता हूं कि ऐसा भी प्यार होता था। उस तरह का प्यार जो आज मिलता नहीं, आजकल सब वो एप्लीकेशन वाला टाइम आ गया ना, एप्स वाला टाइम आ गया, थोड़ा सब कुछ बहुत फास्ट हो गया। और उस तरह की मोहब्बत होती थी उस जमाने में, और किस तरह के लोग भी हुआ करते थे। मैं सिर्फ कहानी कहना चाहता हूं, एक समय दिखाना चाहता हूं, और इस तरह की कहानी हम किस तरह से कह सकते हैं, किस तरह से उसको एंगेजिंग बना सकते हैं, किस तरह का म्यूजिक होता था। कभी कभी वो पुराना समय जीना बहुत जरूरी होता है। और रिसर्च हमने काफी साल की, और सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि हमारे जो की राइटर हैं ज्ञान प्रकाश, वो खुद हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं प्रिंसटन के, उन्होंने खुद किताब लिखी है मुंबई फेबल्स, वो हमारे साथ थ्रू आउट थे। वासन बाला और तनिका चलम हमारे दो राइटर, तनिका चलम ने बहुत समय स्पेंड किया एक एक डिटेल निकालने में। सोनल सावंत जो एक ऐसी आर्ट डायरेक्टर है जो फिल्में ज्यादातर करती नहीं है और बहुत कम करती हैं, जिन्होंने हर चीज वो ऑथेंटिकली रिक्रिएट करती हैं। पहली बार एक ऐसा प्रोडक्शन डिजाइनर था मेरे सेट पे जो हर शॉट पे मेरे फ्रेम पे मेरे साथ बैठा था, जो कि आदत हम बॉलीवुड वालों को नहीं है। राजीव रवि जिस तरह की सोर्स लाइटिंग और जिस तरह का मैजिक हम लोग क्रिएट करना चाहते थे, एक वर्ल्ड जो क्रिएट करना चाहते थे, तो रिसर्च हर डिपार्टमेंट में गई है। कॉस्ट्यूम में निहारिका भसीन खान, एक एक कैरेक्टर का एक सेपरेट बुकलेट बना था, उसके सारे कॉस्ट्यूम्स का बुकलेट बना था। वो सारी डिटेल है जो हम मेकिंग में धीरे धीरे सब डाल रहे हैं, बिकॉज हमने जब इस तरह की फिल्म बनाई, हम लोग सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। हमने कैसे किया वो सब कुछ इंटरनेट पे आएगा। और हाँ बोलिए। हाँ जी, सॉरी जी जी, ये मैं खुद के बारे में कैसे कह सकता हूं, ये तो जब आप फिल्म देखोगे। मेरा सेटिस्फैक्शन मैं तो कोई, मुझे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था मेरे लिए, कि मैंने कभी किया नहीं था। मैंने मैं सबसे कहना चाहूंगा, टेक्निकली ये तो डेब्यू है ना मेरा। अरे विकास वेल इज ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, विकास वेल, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। करण, इस फिल्म के बाद कोई ऑफर मिला है करण आपको? इस फिल्म के बाद कोई ऑफर्स मिले होंगे फिल्म के लिए आपको ऑफर? एंड वुड यू बी डायरेक्टिंग योरसेल्फ इन फ्यूचर? नो, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं खुद को लूं फिल्म में, वो उसको काटा था, उसने ले लिया। मैं खुद को क्यों लूं? आई कांट बी माई ओन लायबिलिटी। अगर किसी और को भी पैसे लगाने मुझ में, वो लगा सकते हैं, मैं कर लूंगा। अभी तक एक ही आया था, नहीं मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में, वो करना नहीं चाहिए। लेकिन आई एम ओपन टू ऑफर्स, ऑफ कोर्स आई एम ओपन अदरवाइज ऑल्सो, बट आई एम ओपन टू ऑफर्स। मैं ये कहना चाहूंगा इस स्टेज के माध्यम से, अगर आप लिखोगे प्लीज करण जौहर वुड लाइक टू गेट सपोर्टिंग रोल्स, क्योंकि मुझे कोई डिल्यूजन नहीं अपने आप के, क्योंकि मैं कोई लीड रोल कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। अच्छे कैरेक्टर रोल्स अगर मिल जाएंगे तो आई थिंक अच्छे खास पैसे मिल सकते हैं, 11 रुपए से ज्यादा तो मिलेंगे। करण, सोनिका है।
सर आपको मूवी में जब आपका फर्स्ट पोस्टर आया एज ए विलेन तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए आपको देखकर कि फर्स्ट टाइम आप टीवी पे नजर आएंगे सिल्वर स्क्रीन पे और वो भी विलेन के कैरेक्टर में। तो जब आपने ये कैरेक्टर को हाँ कही तो किस तरह की आपको लोगों ने क्या बोला कि कैसे लग रहे हैं आप या कैसे आपको किस तरीके के रिस्पॉन्सेस मिले? और प्लस बॉलीवुड के कोई ऐसे विलेन्स हैं जिनसे आपने रेफरेंसेस ली, कोई ऐसे विलेन जो आपके फेवरेट रहे हो हमेशा से? देखिए ये विलेन का जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे किरदार के लिए वो थोड़ा काफी ह्यूमरस भी है और इंट्रीगिंग भी। ह्यूमरस क्योंकि मैं कोई मोगैम्बो टाइप ऑफ विलेन नहीं हूं इस पिक्चर में। ये कोई एक सर्टन काइंड ऑफ जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ऑल्टर्ड है, वो उस किस्म की मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है जो अनुराग ने कंसीव किया। तो मुझे पता नहीं कैसे लोग रिसीव करेंगे। और जब मैंने पहली बार सुना तो आई वाज शॉक्ड क्योंकि जब अनुराग आए थे मेरे ऑफिस तो एक्चुअली वो जब नरेट कर रहे थे फिल्म आई तो वो मेरी फीडबैक के लिए नरेट कर रहे थे। हाफ वे थ्रू द फिल्म मैं सोचा था कि शायद मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर की हैसियत से आए हैं, एज ए व्हाट हैसियत। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नरेशन मैंने सुना और मैंने रिएक्ट किया, मुझे कमाल का लगा इनका जो स्क्रीन प्ले था। तो उन्होंने कहा कि विल यू प्ले खंबाटा, तो मैं शॉक हो गया क्योंकि मुझे कभी किसी ने फुल फ्लेजेड पार्ट कभी ऑफर किया नहीं। तो मैंने सोचा कि पता नहीं ये क्यों कह रहा है। देन ही टोल्ड मी नसीरुद्दीन शाह वाज इन द रनिंग फॉर दिस रोल। तो मेरी और भी मैं कुछ और कहने वाला था लेकिन मैं नहीं कहूंगा नहीं कहूंगा। तो उसके बाद क्योंकि टू बी कंपेयर्ड ऑन टू बी इन द रनिंग फॉर अ रोल दैट नसीरुद्दीन शाह, वो एडेड प्रेशर था। द ओनली रीजन आई रियली थॉट आई डू इट क्योंकि मैंने सोचा क्योंकि लाइफ में मुझे कोई विलेन का रोल कभी ऑफर नहीं करेगा एज एन एक्टर until I get the opportunity of being directed by Anurag and working with Ranbir. And I thought that was the biggest. और जब आप देखोगे पिक्चर तो आप ये डेफिनेटली आप सोचोगे कि जो कैरेक्टर है वो शायद मैं कर सकता था, वो मैंने नहीं देखा था, ये विजन सिर्फ अनुराग का था। आई होप इट वर्क्स आउट, आई डोंट नो। ये एनीवे मेरा क्या है, आई कैन डू मेनी अदर थिंग्स। अगर ये फ्लॉप हो गया मैं और भी कम मैं जमाने में डिजाइन करता हूँ, जूते डिजाइन करता हूँ, फैशन टिप देता हूँ, लाइक ऑलराउंडर। थैंक यू। सर बॉलीवुड में आपके फ्रेंड्स की तरफ से कैसे कमेंट्स आपको मिले? कोई बॉलीवुड की आपके जो फ्रेंड्स हैं बॉलीवुड में उनकी तरफ से कैसे? बॉलीवुड में किसके फ्रेंड्स होते हैं? इंसान होते हैं, फ्रेंड्स नहीं होते हैं। वो क्या कहेंगे, वो तारीफ मुंह पे तो तारीफ ही करते हैं, फिर ट्विटर पे लिख लेते हैं अगर कोई खराब बात करनी हो या पीठ के पीछे। अभी हमने जो किया है वो सिर्फ जो आप हो मीडिया, पेपर्स ऑफ द मीडिया, जो मैं खुद हूं क्योंकि मैं टॉक शो होस्ट हूं तो आई ऑलवेज थिंक आई एम अ मेंबर ऑफ द मीडिया। तो मैं आप सबकी राय सुनना चाहूंगा। मैं अभी इंडस्ट्री वाले से क्या पूछना। करण, अगर कभी आपको अनुराग को डायरेक्ट करना हुआ तो किस रोल में आप रखेंगे अनुराग? मैं नहीं लूंगा अनुराग को। क्यों? नहीं, मैं गुड लुकिंग एक्टर्स को लेता हूं। मैं अनुराग को क्या देखिए क्या कर लूंगा, पिक्चर नहीं बनाते। मैं पागल हूं। हम एक दूसरे को से समथिंग आई डोंट नो मेरा क्या हो गया, मैं कुछ भी कहूं कोई और मतलब निकलता है। लेकिन नहीं, मैं अनुराग को, वो मेरी टाइप का कास्टिंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं लूं। मैं ऐसी पिक्चर बनाऊंगा नहीं जिसमें अनुराग फिट हो। अनुराग को कभी न्यूयॉर्क में इमेजिन किया है, वो गैंग्स ऑफ हसीपुर, वो या तो गांव में चला जाता है या 60s में, वो अब्रॉड में फिल्में नहीं सूट करती अनुराग को। सॉरी। मिस्टर विजय, एक खबर आई थी कि फिल्म ओवर बजट हो गई थी, तो जरा इस पे लाइट डालेंगे, सच में हो गई थी, क्या था क्या नहीं था? देखिए, आई थिंक एज इसके पहले आई जस्ट वांट टू से अनदर थिंग। आई थिंक हम सब जानते हैं कि द फिल्म इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ अ Not bit, Vijay. Please say we are going through a big crisis. Going through a big crisis. But there are only three things that I believe we as filmmakers should really be looking at. Number one, it starts with a fantastic script, and I think that is something that Anurag brought. This was his entire hard work in getting the right script. The second is star power, and I don't believe you can get better than this. And I think I can tell you that Karan, after this film, is going to have a choice of being nominated as either the best villain or the best introductory act or debut, etc. So there are many options awaiting him at the end of this film. And finally, I think on a more serious note, we're seeing that audiences want something with a point of difference. And I promise you, this film, Bombay Velvet, is not only got a point of difference, it is an entertaining, mass appeal film. But I think we're going to need the support of the media to actually take this message deeper down. And आपका जो सवाल था, जैसे Anurag has said that, whatever people have written about, they finished the film in 75 days. The film has been, we never give numbers, but I'm going to give numbers because I think the time has come to draw a line on this and focus on the right thing, which is the quality of the film.
The film has cost us 80 crores, and I can tell you what you're going to see on the canvas is a film which is worth a lot more. So I think that's the point to focus on. Okay, now we have KK Menon who plays. Vishwas Kulkarni, and Satyadeep Mishra is also here, who plays Chiman. Satyadeep. अनुष्का. Yeah, अनुष्का. आप इस फिल्म में जैज सिंगर बनी हैं. जैज सिंगर बनने के लिए क्या-क्या रेफरेंस पॉइंट आपके रहे? अनुराग ने मुझे काफी कुछ स्पेसिफिकली देखने के लिए नहीं कहा था, लेकिन कुछ मुझे अलग अलग रीजंस के लिए अलग अलग फिल्में या रेफरेंस पॉइंट्स दिए थे. ही टोल्ड मी दैट माय सिंगर इज अ ह्यूज फैन ऑफ गीता दत्त, एंड एक रेफरेंस है फिल्म में जहाँ कोई बोलता है मेरे कैरेक्टर को कि मैं गीता दत्त की कॉपी करने की कोशिश करती हूँ एज अ सिंगर. बट हैविंग सेड दैट, बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर द फिल्म, मैंने एशली लोबो जो हमारी फिल्म के कोरियोग्राफर है उनके साथ मैंने बहुत ही एक लंबी ट्रेनिंग करी है टू बी एबल टू लुक लाइक अ कन्विंसिंग सिंगर, बिकॉज एक हम लोगों को एज एन एक्टर आदत हो जाती है टू माइम लाइक व्हेन वी आर सिंगिंग, हम थोड़ा वो वाली सिंगिंग अलग होती है. व्हेन यू एक्चुअली सिंग, व्हिच यू आल्सो सॉ विद रणबीर इन रॉकस्टार, ही लुक्ड लाइक ही वाज एक्चुअली सिंगिंग. दैट वाज मोहित चौहान की आवाज और इनकी आवाज मतलब लग रहा था एक ही इंसान है. So that preparation I did before we started shooting for the film. So that's just how it developed. And after that, like I said earlier, with Anurag, he's very clear on one thing. He says that you can get reference points from everywhere, but ultimately what you find is in the script and with the help of your characters and your surrounding, which is what I think all of us as actors try to develop with the film. Yeah. क्या दिल धड़कने दो में भी आप जैज सिंगर बनी हैं? नहीं. I'm a dancer in the film. और आप सबसे सवाल है क्या बॉलीवुड में जैज म्यूजिक को आप कैसे देखते हैं? आप सबसे सवाल है. सुनते हैं? हाँ, पहले सुनते हैं, देखते बाद में. मतलब जैज का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. जैज की जो हिस्ट्री रही है वहां पे, आई थिंक बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं उस बात से, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सारे अरेंजर्स रहे हैं, चाहे वो शंकर जयकिशन के लिए थे, चाहे वो चिक चॉकलेट रहे हो, एंथोनी गोंसाल्वेज रहे हो, सारे लोग जो हैं वो जैज म्यूजिक से आए थे. यहाँ पे किसी को यह भी नहीं पता होगा कि मोहम्मद रफी एक बहुत बड़े जैज सिंगर थे. वो कोंकणी में जैज गाते थे, और उस समय ला बेला और एस्टोरिया और ऐसे बहुत सारे क्लब होते थे 60s में जहां जैज होता था. ज्यादातर कोंकणी में होता था. सारे टैलेंट जो है गोवा से होते थे, और फिल्म में हम लोग ने वो एक्चुअल रेफरेंसेस यूज किए हैं. और उस समय बहुत बड़ी सिंगर थी लॉर्ना कॉर्डेरो, जिनसे बहुत सारा कुछ इंस्पायर्ड है इस फिल्म में. उनके अगर आप म्यूजिक वीडियोस देखेंगे वो यूट्यूब पे आज भी मिल जाएंगे आपको, चाहे बेबडो हो, चाहे बहुत सारे गाने, वो आज भी जीवित हैं, आज भी गोवा में गाती हैं, आज भी वो 80s में अपने, और उनके शोज आज भी हाउसफुल होते हैं. तो ये फिल्म कहीं हवा में से नहीं आई है, बहुत सारे रेफरेंसेस है. और क्योंकि फिल्म आ रही है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने आर्टिकल्स भी लिखने चालू किए हैं. सबसे स्ट्रांग रेफरेंसेस और रिस्पॉन्स मेरे उन लोगों से आया जो 60s में थे यहाँ पे, जो बहुत खुश थे ट्रेलर देख के. तो वो समय जो है बहुत सारा, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर आदमी को अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए. और वो जैज नहीं होता तो एक बहुत सारा अरेंजमेंट 60s और 70s का जो था वो वैसा नहीं होता. आप जितना आपने आरडी का म्यूजिक सुना है, आरडी बर्मन का म्यूजिक, उसमें बहुत सारा जैज का इन्फ्लुएंस था. वो जैज को हम धीरे धीरे भूल चुके हैं. हम बहुत म्यूजिक जो है बहुत पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है. लाइव म्यूजिशियंस आजकल रिकॉर्ड नहीं करते. इस फिल्म के लिए हम लोग ने फाइनली जाके प्राग में लाइव म्यूजिशियंस ढूंढे, और प्राग में जाके सारा म्यूजिक लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड हुआ है. इस फिल्म में जो भी म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ है सब लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड हुआ है. और उस तरह का जो जैज है वो है, एग्जिस्ट करता है. अगर आप जाएंगे आपको HMV की लाइब्रेरी में मिलेगा. अभी हाल में एक बहुत ही बेहतरीन कोंकणी फिल्म भी आई थी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ना कॉर्डेरो, जो कि जैज के ऊपर थी. प्लीज कीप क्वाइट. मैं बता रहा हूं जैज. रणबीर, मेरी ये दरखास्त है कि कोई अनुराग से अब सवाल नहीं करे. Ranbir, this question is for you. Ranbir and Anushka, you have had the fortune of working with the best of the directors. This time on, how was it working with Anurag Kashyap and working with Karan Johar as a co-actor?
I think Anurag is also one of the best directors we worked with. And it was a wonderful experience. I think we all known कि फिल्में हम सबने देखी है, बहुत पसंद भी करी हैं. ये उनका एक बहुत ही जैसे बोलते हैं बहुत dear project है, बहुत सालों से वो बनाना चाह रहे हैं. I think for me, and I can say that for Ranbir also, and we're very happy that we could be part of this vision of his. और करण के साथ भी बहुत मजा आया. कम दिन शूटिंग करी है मैंने तो एटलीस्ट करण के साथ, तो मैं करण को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाई यहाँ पे. ही इज वेरी एंटरटेनिंग ऑब्वियसली. इट वाज ग्रेट फन. रणबीर, आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा यही मानना है कि आई एम ऑलवेज एज गुड एज द डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर अच्छा है देन आई विल बी गुड. सो आई हैव ऑलवेज बीन सेल्फिश कि मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूं. अनुराग ऐसा डायरेक्टर है कि आप सबको बहुत ही इंटेंस रिबेल टाइप लगता है, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है. ही इज एक्चुअली लाइक अ टेडी बेयर ऑन सेट. मैंने पहली बार जिंदगी में एक ऐसा सेट देखा है जहां अगर करण, मैं, हीरो हीरोइन यहां लेटे हुए है, बीमार है, मार पड़ी है, लेकिन अनुराग अगर चीखता भी था पूरा सेट उसकी तरफ भागता था. मतलब इतना फॉलोइंग मैंने कभी किसी को नहीं देखा. एंड आई डोंट थिंक दिस इज अ डिमांडेड फॉलोइंग. आई थिंक बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ work that he inspires everyone to do, that's why he has that much of love, and I think we all have that much of love for him. Karan, of course, has been my personal mentor. I have did my third film in his production, and he's always been great to me, and in this film he had to play my mentor. तो पहले 2 दिन तो मुझे हंसी आती थी जब करण कोई बड़ा डायलॉग सा बोलता था, with his mustache and this look, and he's trying to be all this menacing and all that. मुझे याद है एक सीन था जहां मुझे करण को गाड़ी के शीशे पे दबाना था, तो करण बहुत चार्ज हो गया and he said, तू मुझे दबा, like go for it, I don't care. नहीं, not in that way, वो type of दबा नहीं. तो मैंने जो दबाया करण को गाड़ी के शीशे पर, उसको लगने लगा. बट ही बिकेम सच अ मेथड एक्टर कि ही जस्ट सेड नहीं यू गो फॉर इट, तू दबाते जा. Eventually जब पैकअप हुआ रात को, he had a migraine and he had to take like things because his head started hurting, but he was wonderful to work with. अच्छी तरह नहीं दबाया, ठीक तरह दबाया होता ना तो फिर लगता नहीं. वो शॉट ट्रेलर में भी है. रणबीर जी, आपकी दाहिनी ओर, जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स काफी हो रहे हैं, लेकिन आपकी जनरेशन के जितने एक्टर्स हैं काफी सेट पैटर्न पर चल रहे हैं, और इस तरह का जोखिम लेने के पीछे क्या वजह थी? जैसे अनुराग ने कहा कि स्क्रिप्ट आपने प्लेन में पढ़ा और हाँ की. एक्चुअली उस दौरान मैं एक दूसरी फिल्म कर रहा था जो हुई नहीं, तो विकास जो मेरे अजीज दोस्त हैं उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी. उस वक्त आई थिंक अनुराग ये फिल्म किसी और के साथ बना रहे थे. तो आई रेड इट ऑन द प्लेन एंड मैंने खुद अनुराग को फोन किया और कहा कि आई लव दिस स्क्रिप्ट, आई लव दिस कैरेक्टर, आई रियली वांट टू डू दिस फिल्म. तो अनुराग खुद मुझे बोला कि यार तू तो बहुत मतलब अर्बन टाइप एक्टर है, आई डोंट नो इफ यू विल फिट इनटू दिस पार्ट, सो गिव मी 2-3 days, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, लेट मी गेट बैक टू यू. आई हैड टू वेट एंड 2 दिन बाद फोन नहीं किया, 1 हफ्ते बाद फोन किया एंड सेड कि सॉरी आई हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम, बट आई हैड टू गेट एडजस्टेड टू द फैक्ट कि आई कैन सी यू इन दिस फिल्म. सो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज बहुत कम स्क्रिप्ट्स मिलते हैं आपको. Usually you want to work with a director, you want to work with a banner, but this was the first time that I judged after a long time actually on just the pure basis of a script, और जो कहानी थी और जो किरदार था सबका. I think that on the merit of that I was very excited to be a part of this film. अनुराग, मेरा सवाल एक और है आपसे, आपकी दाहिनी ओर. लद्दाख में मैंने आपसे सवाल किया था, उस समय अगली भी स्क्रीन हो रही थी और आपने कहा था एंजाइटी है क्योंकि आपका शो भी आने वाला है. बॉम्बे वेलवेट को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनल जर्नी भी इस बीच रही है, तो उस लिहाज से ये फिल्म एक रिलीफ है? मैं फिल्म को लेके इतने साल ड्रीम किया हूं. आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म. मैं बहुत खुश हूं और आपसे ज्यादा मैं मारा जा रहा हूं लोगों को फिल्म दिखाने के लिए. मैं मतलब किसी और से ज्यादा मैं मारा जा रहा हूं दिखाने के लिए कि पहले देखो, क्योंकि इतनी सारे बातें मैं सुनता हूं. मैं कहा तुमको मैं फिल्म दिखाता हूं, तो किसी और से भी ज्यादा मेरा बस चल. मुझे तो रोका गया है कि अच्छा कॉपी बन रही है, प्लीज दिखाना मत किसी को क्योंकि मैं तो दिखा देता हूं खुलेआम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Ranbir, straight here, slightly towards your left. Yes, sir. Ranbir, your last commercial blockbuster hit was Ye Jawani Hai Diwani in 2013. There has been a short lull in your career after that, with Besharam and Roy not doing well at the box office. Considering the fact that you're already seen as a superstar, and also the fact that the first trailer of Bombay Velvet didn't receive great reviews, does that put additional pressure on your shoulders to deliver with this movie? Yes, of course. As an actor, you want to deliver. If I've been given a certain amount of love and respect for the kind of films I've done, I have to deliver. If Besharam doesn't do well, I take ownership of that. I think we all went wrong with that film. But that doesn't mean that, you start thinking extra and, you start putting this and that, कि ये film को hit कराना है.
as long as you're staying true to your work, you know, you work with good people, you work hard. That's all I can do. The fate of a film is not in my hands. So I hope that with Bombay Velvet, at least people give this film a chance. They come to the theaters, watch it, because we've really worked hard towards this film. And Manish Chaudhary